Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, students, in the continuation of the previous lecture, we are going to talk about the Gaussian quadrature formula. And you have been given this example 0 to 1 sine of x square plus 2 into dx. You have to use this 3-point Gaussian quadrature formula. Okay. Now, here you can see that the values of a and b are given as a is equals to 0 and b is equals to 1, and it is mentioned that you have to use the 3-point formula. Okay, since these values are not according to the standard integral, because the values of the standard integral are -1 to 1, so of course we are going to use the modification in this formula. The modified form was x is equals to b minus a over 2 into t plus b plus a over 2. This is the modified form. With this form, I am going to convert my integral from the variable x into the parameter t. Okay. So now, just put in these values. ये substitution से पहले of course अब ये के पास ये values आएंगी तो सही, लेकिन substitution से पहले what I will do that, put in the value of a and b simply, और x का जो expression है वो निकाल लें आप 1/2 into t plus 1/2. Now it will become easy for you. x की जो lower limit है that is 0. At x equals to 0, when you will put x equals to 0 over here, of course 1/2 t plus half, that is equals to 0. When you will take 1/2 over there, तो 1/2 दोनों साइड से cancel हो जाएगा and you will be getting t is equals to -1. Similarly, the value of x for the upper limit would be x is equals to 1. Okay, when you will put x is equals to 1 over here, then 1 minus 1/2, it would be 1/2. 1/2 यहाँ से और इससे cancel हो जाएगा, तो you will be getting the value of t as 1. So ये modified form है ही इस तरह से डिज़ाइन की हुई कि you will always get the values, whatever the values of the integral are there, you will always get the standard form of the integral of the Gaussian quadrature formula. Okay. Now if you have these standard limits, मैंने आपको कल भी बताया था कि whenever you have an integral that is other than the standard form, तो फिर आपको 3 चीज़ें convert करनी पड़ती हैं. The first one is the limits, other limits, the differential dx, और फिर जो उसके अंदर फंक्शन होता है उसको. ठीक है, आप ये देखें लिमिट्स हमने कन्वर्ट कर ली, दीज आर फ्रॉम -1 to 1. अब डिफरेंशियल जो है dx से dt में जाएगा, तो व्हाट इट वुड बी dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू dt सिंपली. ठीक है, डिफरेंशियल भी हो गया. और जो हमारे पास फार्मूला गिवन है दैट इज साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx. ओके, जहाँ जहाँ ये x है, व्हाट यू विल डू, सिंपली वहाँ पे x को t प्लस 1/2 या जैसे भी आपको इजी लगे इसको पुट कर दें, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लें, स्क्वायर करके खोल लें, और आपके पास एक प्रॉपर सा एक्सप्रेशन आ जाएगा. और दिस इज़ द स्टैंडर्ड द इंटीग्रल other than the standard form. This was given to you, and this is the converted form. The limits have been converted, the function have been converted, and the differential has also been converted into its in the standard form. Take this 1/2 out. Now you have this. Okay, now come to the point that you are going to have the 3-point formula. Since it is 3-point formula, then the values, then this integral would be simply equals to (1/2) a1 f of t1 plus a2 f of t2 plus capital A3 f of t3. Now the values of a1, a2 and a3, these have been given in the table.
and I already told you people that these values will never get negative. Okay, और इसमें एक ये सीक्वेंस सा भी होता है, इनकी वैल्यूज़ क्या थी 5/9, 8/9 एंड देन 5/9। और ये जो T1, T2 एंड T3 हैं 3 पॉइंट फार्मूला के लिए उनकी जो वैल्यूज़ थी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल येस्टरडे, या इनकी वैल्यूज़ ये हैं -√3/5 0 एंड देन +√3/5। ओके, सिंपली 3/5 का जो स्क्वायर रूट आप करेंगे तो वो बहुत कोई इस तरह का लेंथी नंबर नहीं आएगा, इट विल जस्ट गिव यू सिंपली 0.6। इसलिए आपको यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैलकुलेटर का लिखा हो कि अपनी इतनी DPs तक उसको फिक्स करना है तो देन यू हैव टू फिक्स दैट। ओके, अदरवाइज यू डोंट हैव टू, नॉर्मल इसको बेशक ट्रीट करें। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर स्टूडेंट्स के साथ। या आप देखें, लुक एट दिस एक्सप्रेशन, आपने इसमें 5/9 इंटू एफ ऑफ, पहले यहाँ पे लिख लें इसको पूरा, इंटू एफ ऑफ -√0.6, ठीक है, ताकि जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे -√0.6 या -√3/5 आपने उसको पुट करना है। एंड देन सिमिलरली फॉर A1 f of T1 प्लस A2 f of T2, T2 जो है उसकी वैल्यू 0 थी इसलिए दैट्स वाई यू आर गेटिंग दिस ओवर हेयर, प्लस A3 इंटू f of T3। ओके, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। एंड इसके अंदर ऑफ कोर्स आप पहले इसको सॉल्व करोगे और फिर उसके बाद आप इसके साइन की जो वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ निकालने के बाद यू विल बी गेटिंग योर आंसर। सो तो वो जो इंटीग्रल था अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वैल्यूज़ है। अब मेरे पास यहाँ पे आई डोंट हैव दैट साइंटिफिक कैलकुलेटर, यू पीपल हैव टू चेक। आई थिंक ये जो मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं ये मेरे ख्याल से रेडियंस में निकाली हुई हैं। एंड आई थिंक यू आर सपोज टू टेक द रेडियन वैल्यू। आपने अपना जो कैलकुलेटर है, क्योंकि ये साइन में आप इसको ट्रीट करें तो मेरे ख्याल से यू हैव टू पुट योर कैलकुलेटर इन द रेडियन मोड। अब आई एम नॉट कन्फर्म ये वाली वैल्यू रेडियन मोड में है या ये वाली वैल्यू डिग्री मोड में है, ठीक है। अगर ये वैल्यू रेडियन मोड में है तो आप इसको एक्सेप्ट करें, अगर ये वैल्यू रेडियन मोड में है तो आप इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, ठीक है। The one first thing is that you have to put your calculator into the radian mode. Okay, अब यहाँ पे इससे related जो examples हैं that you have to do, you have to evaluate this integral. Again, this is not the standard form, you have to convert it in the standard form. A 3-point formula it's mentioned. This is also not the standard form, this is the question, and you have to use a 2-point formula. One thing I must tell you, this topic Gaussian coordinate formula, I don't think so that this is in your book, so you can use internet, ये टॉपिक इसको उस पर सर्च करें, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को, मॉडिफाइड फॉर्म को, वहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स गिवन होंगी, यू कैन डू दोज एज वेल, ठीक है। ये अगर आप कर लेंगे और ये जितनी 3-4 एग्जांपल्स जो हैं टोटल मिला के, तो फिर योर कॉन्सेप्ट एटलीस्ट विल बी क्लियर इन दिस रिगार्ड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अब ये देखें ना कि इसका ये जो है इंटीग्रेशन, और सिमिलरली ये जो भी हमने फंक्शन अभी डील किया है साइन ऑफ x²+2, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ब्यूटी यही है कि यू डोंट हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शंस। सिमिलरली उसको सिंपली जो है उसको न्यूमेरिकली आप अप्रॉक्सीमेट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस और एनीथिंग, then just please ask me. I will be there inshallah. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.